Hello everyone, welcome to the Future Genius Chemistry classes. This is part 5 for Basic Concepts of Chemistry, class 11. In the previous video, we were doing some numericals based on mole concept, and this particular question was your homework, right? So I'm going to solve it now. You can check if you have done it right, if you have attempted it in a right way, okay? So the question was 0.5 moles of magnesium plus 2 iron is given as a sample. Find out the quantity of magnesium plus 2 ions, total number of protons, electrons, neutrons and charge, right? And I also gave you this picture over here which was giving you the number of protons, neutrons and electrons in magnesium atom. Okay? But in the exam you have to calculate it on your own, and I have taught you in the previous video कि कैसे निकालना है protons, neutrons और electrons किसी भी atom में, right? So now moving on to the question, the first part is asking about the quantity of magnesium ions. I know that quantity is what? Number of moles into Avogadro's number. I'm just going to put on the values. Number of moles is given to me as 0.5 into Avogadro's number, that is 6.02 into 10 to power 23, right? And when I solve it, it comes out to be as 3.01 into 10 to power 23 ions. So now I know that my sample contains how many magnesium plus 2 ions? 3.01 into 10 to power 23 magnesium plus 2 ions are there in my sample. Fine. Second part is asking for the number of protons, and I know that my magnesium plus 2 ions has how many protons? 12 protons. Right? एक magnesium plus 2 के ion में 12 protons हैं. So my total protons in sample would be, total protons in sample will be 12 multiplied by 3.01 into 10 to power 23. Why? क्योंकि एक आयन में 12 हैं, तो सैंपल में कितने टोटल आयन्स हैं? इतने हैं. तो ऑब्वियसली टोटल प्रोटॉन सैंपल में कितने होंगे? 12 इंटू में टोटल नंबर ऑफ आयन्स इन दी सैंपल, राइट? सो आई एम सिंपली गोइंग टू सॉल्व दिस एंड इट इज गोइंग टू गिव मी द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. फाइन. फिर मुझसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में. इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है? जब मैं मैग्नीशियम की बात कर रही हूँ तो इसमें मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 12. वाई? बिकॉज माई एटॉमिक नंबर इज 12 एंड आई नो दैट माई न्यूट्रल स्पीशीज, जैसे कि यहाँ पर है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होने वाले हैं. बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट माई चार्ज्ड स्पीशीज थिंग्स गेट डिफरेंट. वाई? देखो, क्योंकि न्यूट्रल एटम से मैं मैग्नीशियम +2 पर जाने के लिए क्या कर रही हूँ? आई नॉक आउट 2 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेट लॉस्ट आउट ऑफ मैग्नीशियम. फाइन. So my neutral magnesium atom had how many electrons? 12. But in magnesium +2, 2 electrons are less, so I am going to subtract 2 electrons from 12. That gives out as 10 electrons. समझ आया? क्योंकि 2 electrons निकाल चुकी हूँ मैं अब अपने न्यूट्रल एटम से, ठीक है? If at all my question had magnesium -2, ध्यान से देखना, then I would have added this 2. Why? Because -2 denotes that electrons have been added. Okay, and +2 denotes that electrons have been knocked out. Fine. Then my electrons would have been 14 electrons. ठीक है? मतलब समझ आया? एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखना, जो चार्ज होता है that has nothing to do with the number of protons and neutrons. It only manipulates the number of electrons. ठीक है? Okay, so now I know that my magnesium +2 ion has how many electrons? 10 electrons. 12 minus 2, right? So my total electrons in the sample would be 10 multiplied by 3.01 into 10 to power 23. Why? Because मेरे 3.01 into 10 to power 23 आयन्स हैं पूरे सैम्पल में, और एक आयन में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आई एम सिंपली गोइंग टू मल्टीप्लाई इट एंड दैट इज गोइंग टू गिव मी दी वैल्यू ऑफ माई टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन सैम्पल. ठीक है? डी पार्ट में न्यूट्रॉन्स के बारे में पूछा गया है. न्यूट्रॉन्स का भी देखना, कोई फर्क नहीं पड़ता कि चार्ज कितना है. आई नो दैट माई मास नंबर इज 24, so simply I'm going to minus the number of protons, that is 12, and that gives me the number of neutrons, और वो भी 12 ही आएगा. ठीक है? तो मैं क्या करूँगी कि एक मैग्नीशियम +2 आयन में मेरे पास कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 12 न्यूट्रॉन्स हैं, राइट?
तो मेरे total neutrons in the sample would be, total neutrons in sample would be 12 multiplied by 3.01 into 10 to power 23. Fine. So I'm going to solve it and that would give me the number of neutrons. Simple है. चार्ज में थोड़ा सा फिर से ध्यान देना. चार्ज देखना, मैग्नीशियम +2 आयन में कितना चार्ज है? +2 चार्ज है, right? And I know that my one electron is 1.6 into 10 to power minus 19 coulombs. एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम. ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कभी, ठीक है? तो मेरा टोटल चार्ज क्या होगा सैम्पल में? टोटल चार्ज वुड बी सिंपली +2 into 1.6 into 10 to power minus 19. ये तो एक मैग्नीशियम आयन का हो गया. तो सैम्पल में कितने आयन्स हैं? 3.01 into 10 to power 23. So when I solve it, it will give me the total charge in the sample. ठीक है? I hope question समझ आया होगा. I'm again repeating that it's very important, so don't miss out on this one. Fine? Okay. Moving on, हम आज बात करने वाले हैं accuracy and precision की. We usually talk about these words and when we use them interchangeably. मतलब हमें लगता है इसमें कोई ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बट हम जब इनके बारे में टेक्निकली बात करते हैं, when we talk about them technically, there is a difference between them. ठीक है? So accuracy is what? How close the measured value is to the actual value. मतलब मेरी actual value से मेरी measured value कितने पास है, वो accuracy होती है. ठीक है? Precision क्या होती है? How close the measured values are to each other. जो वैल्यूज़ मैंने निकाली हैं वो एक दूसरे से कितनी पास हैं, वो मेरी प्रिसिजन होती है. फाइन. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एग्जाम्पल. देयर इज अ गाय ओवर हियर. ठीक है? इसका आज रिजल्ट आया है. सो ही इज़ हैविंग दिस रिपोर्ट कार्ड एंड ही इज़ वेरी हैप्पी एज यू कैन सी फ्रॉम हिज फेस. ठीक है? सो ही कम्स बैक टू होम विद हिज रिपोर्ट कार्ड एंड एवरीवन इज वेटिंग फॉर द रिजल्ट. सो एवरीवन आस्क्स हिम अबाउट हिज रिजल्ट. So this overexcited guy, he says that guess my marks and I'm not going to tell you. Guess कर. ठीक है? So there is father, mother and uncle in the house. All three of them make 3 guesses each. Fine. तो अब हम देखते हैं कि उन्होंने guess क्या किया. Father went with the face of the son. He was like बहुत खुश लग रहा है, तो मतलब 95 तो आए होंगे, इतना खुश तो मैंने इसको देखा नहीं है, तो बहुत अच्छे नंबर आए होंगे. So father being very confident about his son, 95 marks बोले उन्होंने. सेकेंड गेस भी उन्होंने 95 के आसपास ही लगा दिया because he was very convinced by his excited face. 95.2. तो all the 3 guesses were what? Around 95 only. When it came to the mother was like मुझे पता है ये कितने पानी में है, इसका इतना कैलिबर है नहीं है, और खुश बस इसलिए हो रहा होगा क्योंकि पास हो गया होगा. ठीक है? तो moms are moms, right? They know what caliber their child has. So mother ने क्या बोला कि आज तक 70-75 इतने ही आए हैं, आज ज़्यादा खुश है, चलो 75 आ गए होंगे. ठीक है? 75 के आसपास ही उन्होंने भी वैल्यूज़ बता दी. राइट? 3 गेसेस डाले, तीनों के तीनों 75 के आसपास. नाउ दिस अंकल ओवर हियर, he just came to visit their house and he had no idea what caliber this child has, what sort of behavior this child has. He just came to visit them. Okay? So this guy over here, he obviously has to make some random guesses. So uncle का first guess क्या था कि चलो मैं 85 बोल देता हूँ क्योंकि खुश लग रहा है. फिर अंकल ने सोचा यार खुश तो बहुत है, क्या पता इन्होंने 95 मार्क्स स्कोर कर लिया हो इसने. ठीक है? एंड थर्ड गेस उन्होंने बिल्कुल ही रैंडम दे दिया और 80 बोला उन्होंने. ठीक है? अब हम इन वैल्यूज़ को इसकी एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर करेंगे. एक्चुअल रिजल्ट क्या था? द एक्चुअल रिजल्ट वॉज 75%. दैट इज माई एक्चुअल वैल्यू ओवर हियर. राइट? नाउ व्हेन आई कंपेयर माई गेसेस, दीज गेसेस विद माई एक्चुअल वैल्यू, देखना क्या होगा. ठीक है? फादर पे आते हैं. 95, 95.1, 95.2. These values are nowhere near to the actual value, right? But they are near to each other.
सारी की सारी वैल्यूज़ 95 के आसपास हैं, लेकिन मेरी एक्चुअल वैल्यू के आसपास नहीं है। तो ऐसी वैल्यूज़ को मैं क्या बोलूँगी, दीज विल बी नॉट एक्यूरेट, बिकॉज ये मेरी एक्चुअल वैल्यू के आसपास नहीं है, बट दीज आर प्रिसाइज। वाई? बिकॉज दे आर क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, मदर की वैल्यूज़ पे आते हैं 75, 75.2, 75.1, क्योंकि माँ तो माँ है, उसे पता है कि कितने पानी में है बच्चा। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू के आसपास आई वैल्यूज़ सारी की सारी, प्लस उन्होंने अपने वैल्यूज़ के आसपास ही बाकी वैल्यूज़ दी। ठीक है, सारे के सारे गेसेस एक दूसरे के भी आसपास थे और वो एक्चुअल वैल्यू के भी आसपास थे। तो ये वाली वैल्यूज़ को हम बोलते हैं कि बोथ एक्यूरेट भी हैं, both accurate and precise. ठीक है, so such values are both accurate and precise. Moving on to the guesses of uncle, he gave some random guesses and neither of them are near to my actual value nor are they near to each other. Right? एक दूसरे के भी पास नहीं है और एक्चुअल वैल्यू के भी आसपास नहीं है। तो ऐसी वैल्यूज को मैं बोलती हूँ कि दीज आर नीदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। राइट, तो आपको समझ आया होगा एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू डू टाइट्रेशंस इन योर लैब, यू मस्ट नो कि कौन सी वैल्यू एक्यूरेट है, मतलब मेरी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू से कौन सी वैल्यू मिल रही है वो मेरी एक्यूरेट वैल्यू होगी और कौन सी प्रिसाइज है। ठीक है, सो एक और हम कॉमन सा एग्जाम्पल ले लेते हैं जो मोस्टली बताया जाता है आपको। ठीक है, ये मेरे क्या हैं, टारगेट्स हैं। सॉरी, ओके, सो दीज आर माई टारगेट्स। ओके, 4 टारगेट्स मुझे दिए हुए हैं और 4 persons वर आस्क्ड टू हिट द बुलेट टू ईच टारगेट। ओके, तो ये पर्सन 1 का टारगेट है, दिस इज पर्सन 2, पर्सन 3 का ये वाला है और पर्सन 4 का ये वाला है। ठीक है, अब देखते हैं इन्होंने बुलेट्स कहाँ कहाँ पर हिट करी और जहाँ पर हिट करी उनकी वैल्यू जो आई वो एक्यूरेट थी या प्रिसाइज थी। ठीक है, सो पर्सन 1 के ऊपर देखते हैं। पर्सन 1, अब देखो एक और चीज़, ये जो मेरा सेंटर वाला है ना, दिस इज माई मेन टारगेट। मैं चाहती हूँ मेरी बुलेट यहाँ पर हिट करे। ठीक है, तो दिस इज माई एक्चुअल टारगेट। फाइन, लेकिन फर्स्ट पर्सन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो बुलेट कहाँ पे हिट करी, इस इधर 4 बुलेट्स ने हिट किया और यहाँ पर हिट किया। नन ऑफ दीज बुलेट्स हिट द मेन टारगेट। राइट, तो ये वैल्यूज एक्यूरेट तो बिल्कुल नहीं है। क्या ये प्रिसाइज हैं? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये आसपास भी नहीं है एक दूसरे के। कोई यहाँ जा रही है, कोई यहाँ जा रही है, कोई यहाँ, तो मतलब दिस पर्सन नीड सम मोर प्रैक्टिस। राइट, तो ये प्रिसाइज भी नहीं है। पर्सन 2 के पास आते हैं, तो पर्सन 2 के टारगेट में देखो कि दीज वैल्यूज आर नॉट नियर टू माई एक्चुअल टारगेट। राइट, सो आई कैन से दैट इट इज ऑब्वियसली नॉट एक्यूरेट बिकॉज इट इज फार फ्रॉम माई एक्चुअल टारगेट। बट कैन यू सी दैट ऑल दीज वैल्यूज आर नियर टू ईच अदर, मतलब बंदे में कुछ तो है, सारी की सारी एक दूसरे के पास ही हिट करी है उसने। ठीक है, बट इसमें क्या हो सकता है कि या तो आँख में कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होगा। ठीक है, या फिर इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किया, गन जो यूज़ करी, उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से ही कुडंट फायर ऑल दोज 4 बुलेट्स ओवर हियर। ठीक है, तो कोई भी रीज़न हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये प्रिसाइज तो हैं लेकिन एक्यूरेट नहीं है। फाइन, पर्सन 3 की बात करेंगे। दिस ब्रिलियंट पर्सन ओवर हियर, ही हिट ऑल दी 4 बुलेट्स इन माई मेन टारगेट। सारी की सारी सेंटर पे हिट कर दी, साथ के साथ सारी की सारी आसपास भी हैं, है ना। तो इस महान बंदे का काम क्या है, एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। ठीक है, पर्सन 4 का देखो, पर्सन 4 की जो बुलेट्स हिट करी टारगेट के आसपास तो हैं ही, देखो टारगेट के आसपास है, लेकिन ये एक दूसरे के थोड़े से दूर हो गई, है ना। तो आई वुड से दैट दीज वैल्यूज आर एक्यूरेट, लेकिन ये प्रिसाइज नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस। ठीक है, नहीं समझ आया होगा तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले जाकर फिर से मेरे एग्जाम्पल्स को कंसिडर करना। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, या फिर साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके बाद आएगा।
तो साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे. इट इज़ व्हाट एब्रीविएशन फॉर रियली ह्यूज और सम रियली स्मॉल नंबर्स. कोई बहुत ही बड़ा नंबर है या फिर छोटा नंबर है, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो वो साइंटिफिक नोटेशन में हम उसको डिनोट करेंगे. क्यों, देखते हैं अभी. तो मेरा एवोगैड्रोज नंबर की जब मैंने बात की थी तो मैंने बोला था कि कितना बड़ा नंबर है वो 602,000. कितनी जीरोज थी उसमें? इट हैड 21 जीरोज इन इट. 602, ये 9 हो गई, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. आप देख रहे हो कितना ह्यूज नंबर है ना. फिर मैं बात करती हूँ कि मैंने अपनी आईज को ब्लिंक करने में कितना टाइम लगाया. ठीक है, बहुत ही कम टाइम लगता है. आपको पता है कि हम कर भी देते हैं, हमें तो पता भी नहीं होता. तो मैं बोल रही हूँ ये है 0.0000000. ठीक है, 0, एक और 0 लगा दूँ, रहने देते हैं, 203 सेकेंड्स. ठीक है, ये आर्बिट्ररी वैल्यू है. ठीक है, ये मत समझना कि इतना ही टाइम लगता है आइज़ को ब्लिंक करने में. मैं बस एक एग्जांपल बता रही हूँ आपको. तो मैंने बोला कि इतना टाइम लगा मुझे आइज़ को ब्लिंक करने में. देख रहे हो कितना छोटा नंबर है. दिस पर्टिकुलर नंबर इज़ वेरी ह्यूज और ये बहुत ही छोटा है. ठीक है, अगर ऐसे नंबर्स मैं अपनी साइंस में न्यूमेरिकल्स करते हुए लेने लग गई तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में तो बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा, है ना. तो साइंटिफिक नोटेशन क्या बोलती है कि रिप्रेजेंट करो इन नंबर्स को शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट हैंड में रिप्रेजेंट कर लो. तो वो एब्रीविएटेड फॉर्म में मुझे इसको दिखाना है. ठीक है, तो व्हाट आई डू इज मैं अपने यहाँ इन नंबर्स पे डेसिमल लगा देती हूँ. तो आई कैन से दैट दिस नंबर कैन बी रिटन एज 602,000,000. हेक्सिलियन था ना ये, 0.00, राइट. तो अब मैं साइंटिफिक नोटेशन करने के लिए इस डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाने वाली हूँ. ठीक है, अब काउंट करेंगे कि कितने प्लेसेस लेफ्ट पे गया ये. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. And I'll stop after 6. after 6. ओके, तो मैं अब इसको लिख सकती हूँ कि 6.02, क्योंकि मैंने डेसिमल जो है वो मैंने 6 के पहले रोक दिया. ठीक है, और मैं कितने प्लेसेस लेफ्ट गई? 23. सो आई एम गोइंग टू सिंपली राइट इट एज 10 to power 23. ऐसा मैंने क्यों किया? बिकॉज इन साइंटिफिक नोटेशन, ध्यान देना, साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, आई हैव टू कीप दिस डेसिमल आफ्टर 1 non-zero डिजिट. ठीक है, दैट मीन्स कि डेसिमल के आगे एटलीस्ट 1 non-zero डिजिट होना चाहिए. तो यहाँ पर non-zero डिजिट मेरा 6 हो गया. साथ में अगर मेरा डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रही हूँ तो मैं एक्सपोनेंट वैल्यू को क्या करने वाली हूँ? इंक्रीज करने वाली हूँ. ये मेरा 10 to power 23, मतलब कि इसके बाद जीरोज कितने हैं? 23 हैं. समझ आया? तो ये चीज़ ध्यान रखना, और इसी को ही मैं साइंटिफिक नोटेशन बोल रही हूँ. मूविंग ऑन टू दिस वन, इसमें मेरा डेसिमल कहाँ है? यहाँ पर है. तो इसके केस में साइंटिफिक नोटेशन ने क्या बोला था कि डेसिमल कहाँ पे आना चाहिए? एक non-zero डिजिट के बाद. तो ये non-zero डिजिट है, तो आई वॉन्ट माई डेसिमल फ्रॉम हेयर टू हेयर. तो देखते हैं कि कितना प्लेसेस जाना है मुझे. इस केस में मुझे राइट हैंड साइड जाना है. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है, 8 पोजिशंस में राइट पे गई हूँ और मेरा डेसिमल 2 के बाद आ जाएगा. तो नाउ आई विल राइट इट एज 2.03 इंटू 10 to power कितना? -8. अब मैंने यहाँ पे माइनस क्यों किया? क्योंकि मैं इधर राइट हैंड साइड गई हूँ और इधर 23 में माइनस नहीं आया था, पॉजिटिव +23 था ये. क्यों? क्योंकि मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड गई थी. समझ आया? तो आपने देखा कि मैंने इतने बड़े नंबर को भी इतने सिंप्लीफाइड वे में लिख दिया और इतने छोटे नंबर को भी एक सिंप्लीफाइड वे में लिख दिया. तो यही होता है साइंटिफिक नोटेशन में. सम अप करने के लिए आई कैन से दैट व्हेन माय डेसिमल मूव्स लेफ्ट, जब मैं डेसिमल को लेफ्ट पे लेके जा रही हूँ तो माय एक्सपोनेंट वैल्यू जो है 10 के पावर में जो वैल्यू है, दैट वैल्यू गोज अप.
राइट, ज़्यादा हो गई ना यहाँ पर 10 टू पावर 23 में। लेकिन जब मेरा डेसिमल राइट साइड मूव करता है, मूव्स राइट, सो माई एक्सपोनेंट वैल्यू गोज डाउन, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखना, डब्बे में डाल लो, ठीक है। डब्बे से मेरा मतलब दिमाग नहीं है, दिमाग तुम्हारा डब्बा बिल्कुल भी नहीं है, उसको यूज़ करो, ठीक है, बस इसको याद कर लो, ठीक है। सो मूविंग ऑन, सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करेंगे। कुछ रूल्स होते हैं फॉलो करने के लिए। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। सिग्निफिकेंट इज समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। तो मेरे नंबर में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है उसी को मैं सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करने वाली हूँ, ठीक है। तो पहला रूल क्या बोल रहा है, दैट ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सारी की सारी नॉन ज़ीरो डिजिट्स क्या हैं, सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो जैसे मैं बोल देती हूँ 99, तो ये दोनों नॉन ज़ीरो हैं, तो इसमें मेरे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। या फिर मैं बोल देती हूँ 4 5 3 2, ये क्या है, सारी की सारी नॉन ज़ीरो हैं, तो इसमें मेरे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए, 4 आ गए, ठीक है। सेकेंड रूल पे जाती हूँ, इन डेसिमल नंबर 0 बिफोर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले आने वाला ज़ीरो क्या होता है, नॉट सिग्निफिकेंट, वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। जैसे कि 0.054, ठीक है। तो ये ज़ीरोज़ कब आ रहे हैं, मेरे नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले आ रहे हैं, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इस पर्टिकुलर नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आए, 2, ठीक है। सिमिलरली आई कैन से 0.59, तो इसमें कितने हुए, इसमें भी 2 हो गए, समझ आ गया। तो ज़ीरो जब नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले आता है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या बता रहा है वो, बस कि मेरा पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर आया है, और यही इंपॉर्टेंट है इस नंबर में, फाइन, ओके। थर्ड वन सेज दैट 0 बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर कोई ज़ीरो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मैं लिख दूँ 9004, तो ये 2 ज़ीरोज़ जो हैं ये मेरे नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आए, तब ये सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, और मेरे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 4, समझ आया। फोर्थ वन इज इन डेसिमल नंबर ज़ीरोज़ आफ्टर नॉन ज़ीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट। डेसिमल नंबर में अगर ज़ीरो आफ्टर नॉन ज़ीरो आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना आप, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ 0.00540, ठीक है। दीज 3 ज़ीरोज़ आर बिफोर नॉन ज़ीरो डिजिट, और मेरे को पता है कि 0 बिफोर नॉन ज़ीरो डिजिट्स क्या होते हैं, नॉट सिग्निफिकेंट होते हैं। लेकिन बोथ ऑफ दीज ज़ीरोज़ आर आफ्टर नॉन ज़ीरो डिजिट, सो दीज ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट बट दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो मेरे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे इस नंबर में, 4, ये 4, ठीक है। एक और चीज़ देखेंगे, मैं 2 की बात करती हूँ, ठीक है। सिर्फ एक मेरा 2 नंबर है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, एक ही है, 2.0 लिख सकती हूँ, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अब ये 0 कहाँ पे आ रहा है, आफ्टर नॉन ज़ीरो डिजिट आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली 2.00 लिखा है तो इसमें 3 हो गए, 000 इसमें 4 हो गए। डिफरेंस समझ पा रहे हो, इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये क्या बताना चाह रहा है कि मेरी वैल्यू डेसिमल के 1 प्लेस तक आ रही है, डेसिमल के 2 प्लेस तक आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए सिग्निफिकेंट है, ठीक है। फिफ्थ रूल पे आते हैं, इट इज सेइंग दैट व्हाइल कंसिडरिंग द नंबर्स लाइक बिलो, इसको मैं पूरा कर देती हूँ नंबर को, 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 जो कि मेरा एवोगेड्रोस नंबर होता है, ऐसे नंबर्स में ये जो एक्सपोनेंट वैल्यू होती है दिस इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। हमें सिर्फ सिग्निफिकेंस कहाँ से देखना है, इस नंबर से देखना है, और ये बता रहा है कि मेरे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, फाइन। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट जो हमें देखनी है, सपोज मैं लिख रही हूँ 100, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, एक ही है। क्यों, क्योंकि
इसमें देखो 100 तो है, पर कितना 100 है? 100 है। तो इम्पॉर्टेंट क्या हुआ? ये एक हुआ ना, तो इसलिए एक सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है। सिमिलरली जैसे मैंने 200 लिखा, तो 200 में भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों? क्योंकि 100 तो है, लेकिन कितना 100 है? 200 है। तो ये एक नंबर ही मुझे बता रहे हैं ना कि कितनी इंपॉर्टेंस है इस 100 की, तो इसीलिए एक सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है। ऐसे ही 1000 अगर लिख दूंगी तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसमें भी एक ही है। 1000 तो है, कितना 1000 है? 1000 है। आई होप आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स तो समझ आ ही गए होंगे अब तक। ठीक है। तो हम कुछ वैल्यूज क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन दी फॉलोइंग। अब हमें इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं कि कितने हैं। ठीक है। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। 1.111 इसमें सारे के सारे नॉन ज़ीरो हैं, इसलिए इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 22331 ये भी नॉन ज़ीरो हैं, तो टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें 2 ज़ीरोज़ क्या हैं? 1001 में 2 ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स, तो ये सब की सब सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। 100 का मैंने आपको बताया, 100 तो है, कितना 100 है? 100 है, यही इंपॉर्टेंट है इसमें, तो ये एक सिग्निफिकेंट फिगर है। 1000 में भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है। 1.05 10 टू पावर 4 ये 10 टू पावर 4 काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर्स में, ये काउंट करने वाले हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक। 0.005 इसमें क्या है? ये जीरोज आर कमिंग बिफोर नॉन जीरो डिजिट, तो इसलिए ये नॉन सिग्निफिकेंट है, तो सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें 2 हो जाएंगे क्योंकि ये जीरोज बिफोर 2 नॉन जीरो डिजिट्स हैं। 5.0 में ये जीरो इज आफ्टर नॉन जीरो डिजिट, तो ये काउंट होगा, इसलिए इसमें 2 होंगी। सिमिलरली इसमें ये जो जीरो आ रहा है ये आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स आ रहा है, तो दिस विल काउंट। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभार क्वेश्चंस आ जाते हैं इस पे, बोर्ड में तो आता ही आता है। अब देखो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं कि अगर ऐसे ही फिगर्स से हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे तो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। मैं एक बार अपना कैलकुलेटर ले आती हूँ, आप लोग भी अपने कैलकुलेटर्स ले आइए। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज कि 9.6 को मैं ऐड कर रही हूँ 3.002 में। ठीक है। व्हेन आई कैलकुलेट दिस, वेट अ सेकेंड, 9.6 plus 3.002. So my answer came out to be as 12.602. ठीक है। अब आप एक चीज़ देखना कि जब मैं ऐसे आंसर्स निकालती हूँ ना, इसमें तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 5, इसमें 4 हैं और इसमें 2 हैं। ठीक है। तो मैं क्वेश्चन में देखती हूँ कि मेरे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2 हैं सबसे कम, तो मेरा आंसर भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए मैं इस आंसर को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना चाहूँगी। तो मेरा आंसर कितना आएगा? राउंड ऑफ करूँगी, अगर मैं राउंड ऑफ करना आता है ना, अगर 5 से ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा वाला नंबर लिखूँगी, और 5 से कम है तो मैं छोटा वाला नंबर लिखती हूँ। ठीक है। तो 12.602 को मैं सिंपली 13 लिख दूँ। ठीक है। तो ये मेरा राउंडेड ऑफ फिगर आंसर आ गया। ठीक। क्योंकि मेरा सबसे छोटा सिग्निफिकेंट फिगर इधर 2 था, इसलिए मेरा आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में मैंने लिख दिया। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते है। ठीक है। नॉर्मल मैथ्स में ऐसा मत कर देना, साइंस में हम ये थोड़ी बहुत ही चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास 4.23 इंटू 10 टू पावर 5 प्लस 6.92 इंटू 10 टू पावर 5। अब देखो इसमें जो ये वाली 10 टू पावर 5 10 टू पावर 5 इसमें दोनों में सेम है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ये मैथमेटिकल ऑपरेशन देख लेते हैं और हम 4.23 को ऐड करेंगे 6.92 से, इसको ऐड किया। ठीक है। कितना आंसर आया? 325921115 और 6 11.15 आया। तो मेरा आंसर क्या होगा? सिंपली 11.15 इंटू 10 टू पावर 5।
क्योंकि ये तो कॉमन है ना 10 to power 5 दोनों में, तो आई सिंपली एडेड दीज टू वैल्यूज। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी यही होगा, क्योंकि मेरी जो एक्सपोनेंट्स हैं ये दोनों सेम है, 10 to power जो हैं ये दोनों सेम है, तो मैं इसको इसमें से माइनस करने वाली हूँ। ठीक है, तो आई एम सिंपली गोइंग टू माइनस 16.82 9.4 से माइनस करूँगी। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी देख लेते हैं कितनी आएगी। 0.6 में से 9 गए, 16 7। ठीक है, 7.42 आ गया मेरे पास, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 7.42 इंटू 10 to power 3। ठीक है, समझ आ गया होगा कि जब मेरी ये वाली पावर्स सेम होती हैं तो मेरे को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सा है, आपको आता होगा, पर जिसको नहीं आता वो यहाँ से सीख सकता है। अब देखो यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, लेकिन मेरे एक्सपोनेंट्स जो हैं वो अलग हैं, इधर 10 to power 4 है, इधर 10 to power 5 है। तो ऐसे केसेस में मैं क्या करती हूँ कि इनको सेम करने की कोशिश करती हूँ पहले। ठीक है, मुझे पता है कि पॉइंट को लेफ्ट में लेके जाऊँगी तो ऐड होगा वैल्यू में, और राइट में लेके जाऊँगी तो माइनस होगा वैल्यू में, तो मैं किसी को भी चेंज कर दूँगी, इसको किसी को भी। ठीक है, तो मैं अगर 7.98 को चेंज करती हूँ 7.68 को, तो मैं लिख सकती हूँ इसको, ये पॉइंट को 5 में लेके जाना है, तो मतलब मुझे एक ऐड करना है, तो मैं इस पॉइंट को यहाँ ले जाऊँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.768 इंटू 10 to power 5। ठीक, अब मेरा ये और ये सेम हो गया, तो मेरा न्यू क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि 0.768 को ऐड करो 5.93 इंटू 10 to power 5 में। अब मेरे ये जो एक्सपोनेंट्स हैं ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, तो आई कैन सिंपली ऐड दीज टू और आंसर में इंटू 10 to power 5 लगा दूंगी। कर लोगे सॉल्व? नीचे भी वही चीज़ है, मल्टीप्लिकेशन में है इसमें देखना। ठीक है, लेकिन मेरे एक्सपोनेंट्स क्या हैं, डिफरेंट हैं, तो ऐसे केस में मैं क्या करती हूँ, मैं इसको पहले तो 5.28 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 6.28 से। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में अलजेब्रा में आपने सीखा होगा कि अगर बेसिस सेम है, जैसे इसमें बेस क्या है 10 है, इसमें बेस क्या है 10 है, तो मैं पावर्स को ऐड कर सकती हूँ मल्टीप्लिकेशन में। ध्यान से सुनना, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में ऐसे होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आया वो आप यहाँ पे लिख दोगे, और 10 की पावर में क्या करोगे 3 + 7। वाई? क्योंकि बेसिस सेम है, तो वी कैन ऐड ऑन दी पावर्स, तो 3 + 7 आएगा। तो इसका जो भी आंसर आया वो यहाँ पे लिखोगे और 10 to power 10 हो जाएगा। ठीक है, दैट वुड गिव मी माई आंसर। डिवीजन की बात करूंगी तो इसमें क्या करेंगे, 3 को सिंपली डिवाइड करने वाले हैं 6.33 से। ओके, लेकिन जब पावर्स की बात आती है डिवीजन में तो उसमें हम माइनस करते हैं, 13 में से माइनस करूंगी 8 को, क्योंकि मेरी बेसिस सेम है, तो आई कैन सबट्रैक्ट दीज पावर्स। तो हमने क्या देखा, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं, बेस सेम होना चाहिए दोनों का। ठीक है, और डिवीजन में सबट्रैक्ट हो जाती हैं। तो मेरा आंसर क्या होगा, इसको डिवाइड करके जो भी आंसर आया वो यहाँ पर लिखूंगी मैं, इंटू में 10 to power 13 में से 8 गए, कितने बचे 5 बचे, तो 10 to power 5, दैट वुड गिव मी माई आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा आज का लेक्चर। दिस इज माई नंबर, WhatsApp me to clear your doubts, or for the PDF of notes, subscribe to my channel, share my courses, and stay tuned. I am going to frequently make videos. अभी थोड़ा सा लेट हो रहा होगा, तो बने रहिए, we'll solve more questions on this.